Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, good afternoon, sir. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll just wait for 1 minute. Good Good afternoon, afternoon, sir. Good afternoon. तो अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वो आप लोगों की समझ में आ गया है? किसी को कोई Yes, चीज sir. ना समझ आई हो, कोई भी पॉइंट हो जो समझ ना आया हो अभी तक? ठीक है, गुड, बिकॉज इट्स एनीवे इजी चैप्टर. ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे आसान चैप्टर फिजिक्स का यही है. ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा ऐसा है नहीं. आपने वेरियस फॉर्म में ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं किसी किसी चीज़ में, और तो सुनते भी आते हैं उनके बारे में. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी. क्विकली हम देख लेते हैं क्या था. हमने पढ़ा कि अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, कन्वेंशनल, एग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल, इन टर्म्स के पे कुछ डिस्कशन किए थे. ठीक है, तो इनके डेफिनेशन आपको आने चाहिए, एटलीस्ट अपने वर्ड्स में लिखने तो आने ही चाहिए. ठीक है, हमने ये डिस्कशन किया कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, क्या पैरामीटर्स पे हम उसको इवेलुएट करते हैं. हमने ये भी देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके अलावा क्या कोई और कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो है, हमने उनको देखा. ठीक है, देन वी मूव्ड ऑन एंड वी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज द इशू वी फेस विद कन्वेंशनल सोर्सेज, राइट? And we found that there are quite a few issues, the most important being that most of them are not either inexhaustible or renewable. And we also found that most of them, not all though, but most of them suffer from them being not very good for environment, means they are not very clean. Okay, so we wanted to uh, look for better alternatives. The first alternative that we talked about, okay, was to improve the biomass. Okay, out of this, there were conventional sources like wood and coal, and we discussed how to make better use of those. And one was to create an alternative source out of it, which was a biogas, and we also discussed how it is produced with the schematic diagram. Okay, this is all that we have already done, nothing new about this. And we then let's come to the next part of this chapter. Okay, there is slightly different flow in the book. My flow is slightly different, but it shouldn't make a huge difference. Okay, so see, one thing that we are going to focus on this chapter is the source of energy which can produce electric energy. Okay, there is uh, a lot of demand for this form of energy, especially, right? If you really look at it, other than the automobiles, which are still not very electrical in nature, most of the other requirements we want to meet through electricity, right? Because electrical energy is easy to distribute, it's easier to use, the equipment require lesser maintenance. Electrical energy is also good because there might be a lot of pollution in creation of electricity, but when we use electricity there is very limited pollution, and that is why we even want to move, even in sector of automobiles, we want to move to electric vehicles.
Okay, so that at least when they are running in the city, they don't produce any more pollution. Okay, so is electricity clean? Yes, electricity is a clean form of energy, but the source that produces electricity may not be a clean source. Okay, so this keep this in mind. Okay, now this is definitely the most desired, most uh, uh, sought after form of energy. It's the most versatile form of energy. इसमें हमें जो है हम इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं, जो जैसे हीट एनर्जी है उसको हम लिमिटेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और अगर किसी जैसे ऑब्वियसली हम उसको लोकोमोशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टीम इंजन में करते थे, बट वो बहुत कम्बरसम तरीका होता है, और इलेक्ट्रिसिटी हमें एक अच्छी फॉर्म ऑफ एनर्जी देती है। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है उसको हम डायनामो भी बोलते हैं। जो एसी जनरेटर होता है उसको हम डायनामो भी बोलते हैं। ओके, सो दिस वर्ड माइट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके, वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? इट कन्वर्ट्स द रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so what we need is some form of kinetic energy to rotate the rotor of a dynamo. Rotor is the rotating part of the dynamo. If we somehow rotate it, then we can produce electricity. Okay, and this is what we will see, that most of the forms of energy that we will discuss now, they somehow rotate the rotor of a dynamo और अ जनरेटर, एंड इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा हमें एक जनरेटर की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए? नॉट रियली, देयर आर अदर वेज ऑल्सो। जैसे सोलर पावर से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग अ जनरेटर। ओके, और ये होता है पॉसिबल एक फिनोमिनन से जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि हम बिना जनरेटर के डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, और ये सोलर पैनल्स के थ्रू हम करते हैं। जब हम इस पार्ट पे पहुंचेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा भी और तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही दो तरीके हैं, लेकिन उनके विषय में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो लार्ज स्केल पे छोड़ो, एक घर को भी लाइट अप करने के लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। हम दो ही तरीके डिस्कस करेंगे कि एक जनरेटर का रोटर समहाउ हम घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले, या डायरेक्टली लाइट एनर्जी से, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। ओके, तो अब let's start with the most conventional way of producing electricity. This is the way that most of the electricity has been produced till date, and even today this is the biggest form of electricity. This is produced in thermal power plants. Thermal means heat, and power plant here means where electric power is produced. So electric power being produced by heat energy, and this heat energy is usually, when we say thermal power plant, we always mean that this heat energy is coming from a fossil fuel like coal. Okay, so coal is burnt. Okay, like here we see there is a furnace, okay, where the coal is burning. Okay, this heats up a big container of water, the steam is produced, and this steam, okay, rotates a turbine. So turbine is shaped like a fan. Okay, so when the steam comes and hit this turbine, okay, it starts to rotate. When it rotates the rotor of the generator here, and electricity is taken out from that. This is called the
thermal power plant. Okay. Okay. Before we move on, सर हाँ बोलिए। सर जो जनरेटर होता है वो वोल्ट प्रोड्यूस करता है या कुछ और? हाँ देखिए, वो प्रोड्यूस करता है वोल्टेज, राइट। वोल्ट, देखिए जब हम अभी करंट में, आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अभी तक नहीं पढ़ा है आपने, राइट। 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन अभी आप, हमने एक छोटी सी चीज देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, जो आप घर में सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके इस पार्ट को हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है जो ज्यादातर 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। तो V इज द सिंबल ऑफ वोल्ट, ठीक है। जब हम इसमें एक वायर लगा देते हैं, ओके, तो इसमें क्या फ्लो होता है? सर इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो देखिए कि शुरू में यहाँ पे होता है वोल्टेज, वो रहता है, लेकिन जब हम उसको कनेक्ट करते हैं करंट केवल तभी फ्लो होता है, राइट। तो जब हम नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, हम घर में बोलते हैं पावर नहीं आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, some people even say लाइट नहीं आ रही है, right? Now when we say लाइट नहीं आ रही है, because the first dominant use of electricity was to generate light, इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। सो इसलिए हम बोल देते हैं लाइट नहीं आ रही है। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे घर तक इलेक्ट्रिक पावर नहीं आ रही है। अब इलेक्ट्रिक पावर कब आती है? जब वोल्टेज भी हो और करंट भी हो, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट का ना थोड़ा चोली दामन का साथ है, ओके। मतलब कि अगर वोल्टेज होगी और आप सर्किट बनाओगे तो करंट फ्लो होगा ही, और बिना वोल्टेज के करंट नहीं फ्लो होता है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जनरेटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हम कह सकते हैं कि वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और जब आप इस पे सर्किट जोड़ देते हो कोई, तो उसमें करंट फ्लो होता है, ओके। तो दोनों चीजें साथ में ही होंगी, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, राइट, ये जो तरीका है, ऑल्दो हम इसमें यहाँ पे कोल जला रहे हैं, और इसी तरह वालों को हम क्या बोलते हैं? थर्मल बोलते हैं। ऑल्दो हीट हम कहीं से भी ला सकते थे, लेकिन जब हम थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे तो याद रखिए कि हम कोल वाले को बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली इसी के लिए नाम है, ठीक है। लेकिन हम हीट जनरेट की यहाँ पे। अब हीट से हमने क्या जनरेट किया? हीट से हमने डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई, बीच में क्या आता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या आया बीच में? कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है हमेशा, बताइए? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली हमको ये कहना है कि काइनेटिक से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आए? चाहे हीट से आए, चाहे किसी पोटेंशियल एनर्जी से आए, चाहे किसी और काइनेटिक एनर्जी से आए, वो हम देखेंगे कि कहाँ से हमें आता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन हमें फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए इस तरीके को यूज करने, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो कन्वेंशनल तरीका हो गया कोल जलाकर थर्मल पावर प्लांट में, और इसके अलावा दूसरे नॉन कन्वेंशनल तरीके क्या है इस रोटर को घुमाने के, ताकि डायनामो या इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से प्रोड्यूस होती है, विंड जो विंड से प्रोड्यूस होती है, टाइडल जो टाइड से प्रोड्यूस होती है ना, लो टाइड हाई टाइड आपको मालूम ही है। वेव से जो जनरेट होती है, जो सी में वेव्स होते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी, ये थोड़ा मैं आपको तभी समझाऊंगा, इस इंट्रोडक्शन स्लाइड पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। जियोथर्मल भी हम तभी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम ये काम कर सकते हैं, और एक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है,
बायोगैस, सॉरी बायोगैस, ओके गलत लिखी है, बायोगैस से भी हम ये जनरेट कर सकते हैं, ओके क्योंकि बायोगैस से हम पानी उबाल सकते हैं जिससे स्टीम बनेगी, तो सेम लाइक थर्मल पावर प्लांट बट वी विल कॉल इट बायो गैस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, ओके थर्मल पावर प्लांट नहीं बोल, ओके। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो हाइड्रो का मतलब होता है व्हाट, समबडी सेज इट, water, वाटर। वाटर, ठीक है। तो water. ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अब देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमने बोला कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमने बोला टाइडल इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमने बोला वेव इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमने ये इतने सारे बोल दिए पहले, राइट? सभी पानी से हैं, राइट? लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम केवल तभी यूज करते हैं नाम जब ये वाला प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि पानी से कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसका नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। टेक्निकली कर सकते थे मगर ऐसा करते नहीं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए हम ये चीज जानते हैं कि अगर हमारे पास हाइट पे पानी है, ओके, तो यहाँ पे पानी है, अगर ये पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ पे पानी में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। हाइट पे पोटेंशियल। हाँ मतलब काइनेटिक Potential, कम है, मेन यहाँ पे है पोटेंशियल, potential energy. ठीक है। थोड़ी सी काइनेटिक भी है, हल्के हल्के, जैसे नदी मूव करती है, नदी कोई बहुत तेज तो मूव Yes, sir. करती नहीं है, Flowing तो में. हाँ हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मेन एनर्जी जो है पोटेंशियल है। Potential. अब ये बहुत हाइट से, जैसा कि आपने किसी वाटरफॉल में देखा होगा अगर घूमने गए हैं, कि वहां से पानी गिर रहा है, तो आप ये देखेंगे जब वो नीचे टकराता है ये पानी, तो वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से गिर रहा है, बहुत तेज गिरता है, बहुत आवाज होती है, हमें पता है कि इसमें बहुत ताकत है, उस समय बहुत एनर्जी है, ठीक है। तो ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है इस समय, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है जब तक ये नीचे गिरता है, राइट? तो इसी चीज Yes, को sir. हम यूज कर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल वाटरफॉल के नीचे भी हम ये टरबाइन लगा सकते थे अपनी, राइट? लगा सकते थे नेचुरल वाटरफॉल के नीचे, यस लगा सकते हैं चाहे तो। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, राइट? और ऐसी साइट्स हैं जहां पे नेचुरल वाटरफॉल के नीचे भी टरबाइंस लगाई गई हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि ज्यादातर जहाँ पे वाटरफॉल्स होते हैं वहां पे ये जो टेरेन होगा नीचे का, वो बहुत आसान नहीं होगा काम करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए पावर प्लांट, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम इस फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, बारिशों में ये बहुत तेज आ जाएगा, इतना तेज भी आ सकता है कि इसको तोड़ ही दे, ठीक है। और जैसे गर्मी आएंगी पानी कम हो जाएगा तो ये प्रोड्यूस करना उसको बंद कर देगा, तो इस पे कंट्रोल कम होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है, इस तरह की भी साइट्स होती है। तो सबसे कॉमन कौन सा है वो हम स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि रिवर्स में डैम बनाते हैं, राइट? व्हाट इज अ डैम? डैम ये है कि अगर ऐसे रिवर जा रही थी कहीं पे, उसके बीच में आपने एक वॉल बना दी है, ठीक है, ये वॉल बन गई, तो ये डैम का पानी, जो डैम है ये पानी रोक लेगा इसका, और यहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी पानी, ठीक है। और क्या कर देते हैं, एक लिमिट के आगे पानी को जाने देते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं कि इसमें भरता ही जा रहा है ऊपर तक, तो थोड़ा सा पानी आप यहाँ से छोड़ते भी रहते हो, तो अब ये एक लेवल मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पानी, क्योंकि आपने आर्टिफिशियली एक डैम बना दिया। अब क्या होता है कि इस डैम पे से, यहाँ से जब आप चाहो, यहाँ पे स्लूस गेट्स लगे होते हैं। स्लूस गेट्स वो गेट्स हैं, ओके, ये वर्ड्स याद रखिएगा क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन में लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्लूस गेट लगे हैं, एकदम ऊपर नहीं लगे होते ये डैम पे, ठीक है, इतनी ऊपर भी नहीं लगे होते कि बहुत वेग से पानी गिरे, तो ये लगे होते हैं थोड़ा बीच में कहीं,
ठीक है, ये स्लूस गेट लगे हैं, इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, खोल या बंद कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कम खोल सकते हैं, पूरी तरह से खोल सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल है हमारे। तो हम क्या करते हैं, स्लूस गेट को खोलते हैं तो ये पानी काफी रफ्तार से आगे आता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे हमारी टरबाइन लगी है, और ये पानी जब इस टरबाइन से टकराता है तो इसको घुमाता है, और फिर ये अगर घूमता है तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। समझ आ गया? Yes, sir. है ना, सिंपल यस है। सर। तो इसमें हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट। ओके, ये हाइट नेचुरल भी हो सकती है, और ये हाइट जो है Artificial. हाँ, हाइट डैम के थ्रू आर्टिफिशियली भी जनरेट की जा सकती है, ये ज्यादा कॉमन तरीका है। ठीक है, ओके। तो इसमें इसके फायदे क्या हैं ये करने के? सबसे पहली बात है कि ये मेनली रिन्यूएबल है, मतलब इनएग्जॉस्टिबल भी लगती है हमें, क्योंकि पानी तो नदियों में रहता ही है, लेकिन द वेरी वेरी गुड वर्ड फॉर दिस विल बी रिन्यूएबल फॉर्म है ये हमारा, इनएग्जॉस्टिबल भी है। ठीक है, ये रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि नदी, बारिश होगी, नदी में वापस से पानी आएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा वाटर साइकिल है, नेचुरल वाटर साइकिल, वो इस चीज को रिफिल करता रहता है, हमें कोई एनर्जी स्पेंड अपनी नहीं करनी पड़ती है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये क्लीन भी है, क्योंकि देखिए इसमें ना हमने कुछ जलाया, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं किया, कोई नए प्रोडक्ट्स ही नहीं बने, केवल हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें हमने कोई पॉल्यूशन नहीं किया। ठीक है, हाँ उस साइट पे जरूर नॉइज होती है, थोड़ा सा नॉइज पॉल्यूशन होता है, बट वो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो यूजली दूर होता है लोगों के रहने की जगहों से। फिर ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि देखा जाए, जैसा मैंने कहा, पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए हम कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करते, वो हमें नेचुरली वाटर साइकिल से मिल जाता है। लेकिन इसके इश्यूज भी हैं बहुत सारे। ठीक है, इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में हम अपनी काफी सारी एनर्जी ऐसे ही जनरेट कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इश्यूज हैं। पहला इश्यू ये है कि हम ये नहीं कि हर जगह अगर हम सोचें कि दिल्ली में डैम बना लें तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहां पे पानी इस क्वांटिटी में भी है, कंट्रोलेबल भी है, और उसको रोकने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो ऐसी जो जगहें हैं बहुत कम है, दे आर वेरी वेरी फ्यू साइट्स वेयर वी कैन डू इट इन इंडिया, और फॉर दैट मैटर इन मोस्ट कंट्रीज। इसको सेटअप करने का कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि एक डैम बनाना तो मल्टी ईयर, मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसमें जब हम डैम बनाते हैं, ठीक है खर्चा हो गया, कोई बात नहीं, बहुत बड़े और इश्यूज हो जाते हैं। जब वो डैम बनता है, ठीक है, तो वो पानी को रोकते हैं हम यहाँ। ठीक है, जब हम पानी को रोकते हैं तो इसके पीछे की जो नदी है उसमें वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो वो उसके शोर से ओवरफ्लो कर कर बहुत बड़े एरिया को उसमें डुबो देता है। तो इस एरिया में बहुत बड़ा एक परमानेंट फ्लड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनको पहले से नोटिस देके गवर्नमेंट को हटाना पड़ता है। अब अगर उनको हटा दिया तो उनको ऐसे ही थोड़ी ना कि आप यहाँ से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक रहने की जगह दे, वहां पे वापस उनका व्यवसाय सेटअप करने के उनको साधन दे। ये सब बहुत मुश्किल काम है, और ये सब करने के बाद भी बहुत लोगों की जो लाइफ है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, और इसी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन बाय पीपल to building new dams. Okay, initially there was lot of craze of building dams, but now there is more opposition than support for building dams. Okay, so this has become very difficult to do it now. Then where this flood happens, all the vegetation is also drowned, and
once that vegetation is drowned, we will lose the biodiversity of that area, which has lot of other effects. We have studied that, right, in 8th standard also, that biodiversity is a very important part of our survival. Then what happens that स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ये बना रहा है, तू कह रहा मैं सोना रहा। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं मैम? वरना आप कर रहा हूँ ये रहा ना, जैसे बनने कार्टून ऐसे बना रहे, मैं अरे पेन लगा क्या सर ने कह रहे कि मैं समझा भी ना। ओके, सॉरी, आई हैव म्यूटेड हिम। ओके, हाँ, तो फिर क्या होता है कि द वेजिटेशन विच इज ड्राउन्ड, वी लूज इट, बट इट स्टार्ट्स टू रॉट ऑल्सो. Once it starts to rot in those marshes, methane, mainly methane is produced, right? We know methane is known as a marsh gas. Okay, जैसे बायोगैस में मीथेन प्रोड्यूस होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी मीथेन प्रोड्यूस होने लगती है. और इस मीथेन को हम जो है हार्नेस नहीं कर सकते, हम इसे कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का एरिया होता है कई बार. ओके, सो इतने बड़े एरिया की हम मीथेन तो कैप्चर कर नहीं सकते, तो ये रिलीज हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और मीथेन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है. ओके, तो देयर आर इश्यूज विद सच सर ये मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है इधर? हाँ, तो मीथेन कब प्रोड्यूस होता है? देखिए, मीथेन हमने बायोगैस में पढ़ा है. मीथेन बायोगैस मेनली क्या है? मीथेन है. यस तो सर, हमने मीथेन उसमें होता हाँ, तो हमने उसमें पढ़ा कैसे प्रोड्यूस होता है. ये तब प्रोड्यूस होता है जब मटेरियल रॉट्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो ये रॉटिंग, अगर कोई चीज डूब जाएगी, जैसे जमीन में गाड़ दी, तब हो रहा है. लेकिन अगर पानी में है, ठीक है, पानी में भी ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है ना. H2O में तो है, लेकिन वो तो यूज हो नहीं सकती. जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम है पानी में, थोड़ी सी होती है जिससे मछलियां जिंदा रहें, प्लांट जिंदा रहें, लेकिन बहुत कम होती है. तो जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर गए हैं जो इसमें पड़े हैं पानी में, ठीक है, यहाँ पे ट्रीज हैं जो दबे हुए हैं, है ना, एनिमल्स हैं जो दबे हुए हैं, तो ये जो पानी में है ये रॉट होंगे. और रॉट होंगे जब ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? मीथेन प्रोड्यूस होगी. और ये मीथेन हम कैप्चर तो कर नहीं सकते इतने एरिया की, तो इसलिए ये लूज होके एटमॉस्फेयर में जाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा. ठीक है, ओके, है सर. ओके. तो विंड एनर्जी, हम विंड से भी, अब देखिए हवा चलती है तो आपने बचपन में खेला होगा कि ये चक्री होती हैं, यू रिमेम्बर, ऐसी Yes. चक्रियां होती हैं और हवा चलती है तो ये घूमती है. बस बिल्कुल उसी तरीके से ये होती है विंड मिल. ओके, तो विंड मिल एक इसी तरह की चक्री है जिसपे कि जब हवा आके टकराती है तो उसके ब्लेड्स को, उसके फैन को, उसके ब्लेड्स को घुमाती है. और ये ब्लेड्स अंदर कनेक्टेड होते हैं रोटर से ऑफ अ जनरेटर, और ये जनरेटर में अब घूमेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है. लेकिन अब हम देखते हैं कि एक विंड में इतनी भी ताकत नहीं होती है नॉर्मली कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके. जैसे डैम से गिरने वाला पानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है. ठीक है, तो लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसी जो हमारे ये होते हैं ब्लेड्स होते हैं, ये बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे टावर्स बनाने पड़ते हैं और उनको ऐसे लाइन से लगा देते हैं बहुत बड़े एरिया में. ओके, मल्टी किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बिग एरियाज में इस तरह से मल्टीपल टावर्स खड़े करते हैं. ठीक है, और इन सब की फिर इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन कर कर वो ट्रांसमिट की जाती है.
गॉट इट? Yes, sir. यस लेकिन सर। विंड एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह हम डैम से पानी को कंट्रोल कर रहे थे। तो हमें जब ये नहीं है उस समय एक बैकअप भी चाहिए, तो बैकअप भी हम लगा के रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो जब ये बहुत सारे हम इसको लगा देते हैं तो यूजुअली हम इन्हें विंड फार्म्स कहते हैं, ओके। तो एक को बोलते हैं विंड मिल या विंड टावर, और जब बहुत सारे टावर्स लग जाते हैं तो उसको विंड फार्म बनाते हैं। और यूजुअली हम इनको थोड़े थोड़े डिफरेंट एंगल्स पे लगाते हैं ताकि अगर विंड की डायरेक्शन बदलती भी रहे तो उनमें से कुछ ना कुछ चलते रहे, ठीक है। नाउ सम where it is used, Denmark uses it for a very long time. It is even known as a country of winds, okay. India is rated 5th while Germany is rated 1st in wind electricity generation, okay. In India there are multiple sites, okay. There are definitely many sites in Tamil Nadu, Kanyakumari and Karnataka, okay. So these are also some things which are good to remember. I don't know if many questions are asked around where it is, but you should know sometimes it might be asked, okay. So good to remember. Now wind energy के benefits क्या है कि renewable है, inexhaustible भी है, ये तो renewable भी है, inexhaustible भी है, right? wind तो चलती रही, clean है, कोई pollution नहीं कर रही है ना, और economical है, बहुत ही कम हमारी कॉस्ट है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं इसमें कि जब हम कहते हैं ये सस्ती है, केवल रेकरिंग कॉस्ट यानी जो बार बार कॉस्ट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में वो बहुत कम। लेकिन क्या ये सच में बहुत सस्ती है, वो अभी हम देखेंगे इसके इश्यूज में, ओके। तो पहली चीज ये है कि दिस कैन ओनली बी यूज्ड इन अ फ्यू साइट्स जहां पे बहुत ज्यादा खुला स्पेस है और विंड की स्पीड काफी हाई है, ओके, मोर देन 15 किलोमीटर्स एन आवर मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। फिर बैकअप फैसिलिटीज चाहिए तो वो एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है हमको, ठीक है। काफी बड़ा एरिया लगता है, 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ओके, इज नीडेड just to produce 1 megawatt of electricity. So it requires a lot of land area, okay. And the initial cost to set it up is very high and the maintenance cost is high because usually places where there is big winds, sometimes there can be storms also, okay. So especially because of storms these blades can get damaged, okay. But even sun, rain, etc. can damage those blades. So while we said it is economical, the debate is it really economical because of high initial costs and high maintenance costs. As it turns out, today they are actually fairly expensive for us, more expensive than thermal electric power, okay. Now let's come to the tidal energy. Somebody can tell me what is high and low tide? Who will tell me? जागृति आप बताइए, हाई टाइड लो टाइड क्या होता है? सर जब तो ओशियन का वाटर जब ऊपर आता है, हाई हो जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून, उसे हाई टाइड कहते हैं। जब वो ग्रेविटेशन पुल फॉल हो जाती है, वो लो चला जाता है, उसे लो टाइड बोलते हैं। वेरी गुड। सो हाई और लो टाइड से हमें चेंजिंग क्या मिल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है पानी का, वो ऊपर नीचे हो रहा है हमारी बिना किसी एफर्ट के, तो हम इसको हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डैम कंस्ट्रक्शन है वो हम इसके डैम्स को हम टाइडल बैरेजेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये टाइड को जो है हार्नेस कर रहा है, तो टाइडल बैरेजेस, ये नाम याद रख लीजिए एक और, ठीक है। तो ये केवल हम नैरो ओपनिंग में कर सकते हैं सी के। अब सोचिए अगर सी इतना बड़ा है, राइट, कहीं पे सी है ऐसे एक शोर, हम केवल बीच में इतना बड़ा डैम बना दें तो कोई फायदा होगा? क्योंकि पानी तो यहां से एस्केप कर जाएगा, राइट।
तो ये हम केवल ऐसी ही साइट्स में बना सकते हैं जहां पे मान लीजिए सी इस तरह से है और यहाँ पे कुछ हाई माउंटेन्स या कुछ है, तो हम यहाँ पे बैरेज बना सकते हैं। तो ऐसी जगह में हमने बैरेज बना दिया या डैम बना दिया। अब उसमें उसका जो डिजाइन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए, इस साइड सी है, इस साइड लैंड है। तो जब हाई टाइड होती है तो यहाँ पे टरबाइन लगी है एक ओपनिंग में, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में पानी को बदलेगा और ये टरबाइन को रोटेट करेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, अब धीरे 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 पानी इस साइड आ गया। जब लेवल बराबर हो गया, जब लेवल यहां तक हो गया, राइट, ये थोड़ा ना मतलब ये ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैंने इंटरनेट से ली है तो इसको मत देखिए। ठीक है, ये यहां तक पानी आ गया एक समय के बाद, राइट। अब जब पानी यहां आ गया तो फिर कुछ समय के बाद लो टाइड होनी शुरू हो जाएगी, तो ये वाला पानी यहां से रिसीड हो जाएगा, पानी लेवल कम आ गया। तब क्या होगा, यहां पे जो पानी बढ़ गया था वो इस डायरेक्शन में टरबाइन को घुमाना शुरू कर दे। तो हम जब टाइड हाई हो रही है तभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जब टाइड लो हो रही है तभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट डिजाइन जिसमें हम आते हुए पानी से भी और जाते हुए पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें तो डायरेक्शन चेंज होगी ना बार बार करंट की। हाँ बिल्कुल होगी, तो जब इसको डिजाइन करते हैं ना तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, वैसे भी जो हम करंट प्रोड्यूस करते हैं ना वो एसी करंट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली हम ज्यादा केयर नहीं करते, लेकिन अगर हमें बाय चांस डीसी करंट भी जनरेट करना होता तो वो इस जनरेटर की डिजाइन में ध्यान रख लिया जाएगा। ठीक है ना, वो तो एक मामूली सा चेंज होगा जिसकी वजह से हम 2 बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन है। और अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टिबल भी है। अब ये लो हाई टाइड्स तो होती रहेंगी इवन आफ्टर ह्यूमन रेस इज ओवर, राइट। ठीक है, तो इसको हम इनएग्जॉस्टिबल कहना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट। अब इश्यूज, इसमें इश्यूज बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके साइट्स ही बहुत कम होते हैं जहां पे ऐसा माउंटेनियस है, हाई टेरेन हो और उसकी चौड़ाई कम हो ताकि डैम बन सके। ये बहुत बड़ा इशू। ओके, और दूसरा क्या है कि इसमें क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम चेंज होती है, क्योंकि टाइड के समय में ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल 100 मीटर हाई हो जाएगा। ठीक है ना, वो तो 1-2 मीटर इतना कुछ फर्क पड़ता है, उससे फिर जो पावर जनरेट होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए इसका although it is used at places, it has no wide spread use. ओके, अब वेव एनर्जी पे आते हैं। तो वेव एनर्जी, वेव्स क्या होते हैं, जो पानी में ऐसे वेव्स उठते हैं सी वाटर में। ठीक है, बहाव। हाँ ठीक है, जो तरंगे उठती हैं, जो पानी में इस तरह का जो क्रैश्स एंड ट्रॉफ्स बनते हैं। ठीक है, ये किस लिए बनते हैं, ये एक्चुअली विंड की वजह से बनते हैं। ओके, द रीजन फॉर दिस इज विंड। और जो विंड है वो यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं हम कर रहे हैं, विंड वेव बना रही है और वेव को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटर को घुमाती है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द टाइम, वी विल पिक अप फ्रॉम हियर and we will try to finish the chapter in the next class. Okay, अभी तक का सब समझ आ गया है ना? यस सर। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप ट्रिग्नोमेट्री का भी स्टार्ट करोगे?